નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું હર્ષુ પરમાર સહયોગ દ્વારા પ્રસ્તુત ન્યૂઝ 20 ગુજરાતીમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચારો। જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા બાલાગામ ખાતે સેવા સેતુના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કેશોદ તાલુકાના બાલાગામ ખાતે સેવા સેતુના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નાગરિકોએ પીએમજેવાય કાર્ડ, જાતિના દાખલા, રેશન કાર્ડ, પીએમ કિસાન અંતર્ગતની વિવિધ સેવાઓ એક જ સ્થળે લાભ લીધો હતો અને આ સેવા સેતુના કાર્યક્રમમાં સ્થળ ઉપર જ 1800 અરજીઓનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો। જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર અનિલકુમાર રાણાવંશીના માર્ગદર્શનમાં કેશોદના બાલાગામ ખાતે પટેલ સમાજ ખાતે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આયોજિત સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં નાગરિકોએ પશુ સારવાર, આધાર કાર્ડ અપડેટ, પીએમજેવાય કાર્ડની લગતી સેવા, ફાર્મર રજીસ્ટ્રેશન, પીએમ કિસાન અંતર્ગત સેવાઓ, મતદાર યાદી સુધારણાના ફોર્મ, જાતિના દાખલા, રેશન કાર્ડને લગતી સેવાઓ, જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા કચેરી સેવાઓ સહિતની સેવાનો નાગરિકોએ લાભ લીધો હતો। ઉપરાંત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આયોજિત મેડિકલ કેમ્પ અને રક્તદાન કેમ્પમાં પણ નાગરિકો સહભાગી બન્યા હતા। અંતે ઉલ્લેખનીય છે કે સેવા સેતુના કાર્યક્રમમાં સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભાર્થીઓએ રાજ્ય સરકારનો અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રનો આભાર માન્યો હતો। લોકોએ પોતાના નાના મોટા કામો કરાવ્યા, એક સપ્તાહથી તૈયારી ચાલતી હતી। આપણા કલેક્ટર શ્રી મને મોકલતા હતા, આપણા દરેક ગામની અંદર ગામ સભાઓ થઈ, કેટલાક ગામોએ રસ લઈને ગામ સફાઈનો કાર્યક્રમ કર્યો, સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવ્યું। કેટલાક ગામોની અંદર સરકારી યોજના ની સમજણ આપવામાં આવી, રમત ગમત સ્પર્ધાઓનું આયોજન થયું અને 5મા દિવસે આજે સેવા સેતુના કાર્યક્રમની અંદર અમદાવાદથી સ્પેશિયલ નિદાન અને સારવાર કેમ્પ માટે નિષ્ણાત ડોક્ટરોની ટીમ આવી। મેં પૂછ્યું તો મને કહ્યું કે 200 થી વધારે લોકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્ય સંબંધી નિદાન કરાવ્યું। અહીંયા જ એમને ગમે એટલી મોંઘી દવા હોય તો પણ એમને મોંઘી દવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી અને એની સાથે કેટલાય લોકોના કેટલાય કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। 7 કરોડના ખર્ચે આપણી નદીને ડિસિલ્ટિંગ કરવા માટે, અંદરથી જાડી ઝાંખરા દૂર કરવા માટેનો કામનો પણ પ્રારંભ થયો। આ કામ અર્જુનભાઈએ કહ્યું 1400 કરોડ ને 350 કરોડ માંથી નથી, એનું ખાતમુહૂર્ત તો આપણે હજુ બહુ મોટું કરવું છે। મારી તો ઈચ્છા છે કે પ્રધાનમંત્રીજીને આપણે આમંત્રણ આપીશું, પરંતુ એની શરૂઆત થઈ। મેં કહ્યું કે વિસ્તારના કોઈ ક્રિટિકલ કામો હોય, તમે આ ગામડામાં 4-5 દિવસ સુધી મહેનત કરશો તો ગામડામાંથી કેટલા એવા સામાન્ય કામ આવશે કે જેની માંગણી 4-5-6 ગામની ભેગી હોય, તો એવા કામનું સમાધાન કરવા માટેનો પણ પ્રયાસ થયો। જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત ગૌશાળાને 11,000ની કિંમતનો 350 કિલો ખોળનું દાન મળ્યું। દાન પૂર્ણ કરવા અર્થે જાહેરમાં ઘાસચારો ન નાખવા મહાનગરપાલિકા સંચાલિત ગૌશાળામાં દર્શનભાઈ રાદડિયાના સ્મરણાર્થે દાન પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું। જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા જૂનાગઢને સ્વચ્છ રાખવા તેમજ રખડતા ભટકતાને જાહેર માર્ગો પર અડચણરૂપ થતા ગૌવંશને અટકાવવા પ્રયત્નશીલ છે, પરંતુ શહેરીજનો દ્વારા દાન પૂર્ણ કરવા અર્થે જાહેરમાં અનધિકૃત ઘાસચારો વેચતા ઇસમો પાસેથી અનધિકૃત ઘાસચારો લઈ જાહેર માર્ગો પર ગૌવંશને આપવામાં આવે છે, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં ગંદકી ફેલાય છે તેમજ જાહેર માર્ગો ઉપર, જાહેર સ્થળો પર ગૌવંશ અડચણરૂપ બને છે। ત્યારે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર ડોક્ટર ઓમ પ્રકાશની સૂચનાથી તેમજ જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં રખડતા ભટકતાને જાહેર માર્ગો ઉપર અડચણરૂપ થતા ગૌવંશને અટકાવવા અને જાહેરમાં અનધિકૃત ઘાસચારો વેચતા ઇસમોને પકડવા માટે સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। જાહેરમાં ઘાસચારો વેચવા અથવા નાખવા ઉપર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે। ત્યારે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં રખડતા ભટકતા ગૌવંશને પકડી જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત ગૌશાળામાં રાખવામાં આવે છે।
ત્યારે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત ગૌશાળામાં સ્વર્ગવાસ દર્શનભાઈ રાદડિયા નેચરમ આઈસ્ક્રીમ દ્વારા 11,000ની કિંમતનો 350 કિલો ખોળનું દાન કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય સેનાના શૌર્યને વધાવતા કેશોદના નગરજનો. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાના નેતૃત્વમાં તિરંગા યાત્રા યોજાઈ અને ઉત્સાહભેર નગરજનો આ યાત્રામાં જોડાયા હતા. ભારત સરકારના શ્રમ, રોજગાર, રમતગમત અને યુવા બાબતના મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાના નેતૃત્વમાં કેશોદ ખાતે ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતાને વધારવા માટે તિરંગા યાત્રા યોજાઈ હતી. કેશોદ એસટી બસથી શરૂ થયેલી 4 ચોકથી તિરંગા યાત્રા નગરજનો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદ સામે કઠોર કાર્યવાહીના ભાગરૂપે ઓપરેશન સિંદૂર હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તેની સફળતા વધારવા ભારતીય સેનાના સમર્થનમાં શહેર અને ગામડાઓમાં તિરંગા યાત્રા યોજવામાં આવી રહી છે, જેમાં યુવાનો, નાગરિકો સૌ કોઈ જોડાઈને દેશ માટેની ભાવના પ્રગટ કરી રહ્યા છે. આ તિરંગા યાત્રામાં સ્થાનિક સેવાભાવી સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ, ભારતીય સેનાના નિવૃત્ત જવાનો, સ્થાનિક આગેવાનો સહિતના લોકો સહભાગી બનીને ભારતીય સેનાના પરાક્રમને બિરદાવ્યું હતું. તિરંગા યાત્રા શરૂ થયા ત્યારે પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી કુમકુમ તિલકથી ભાવભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ તિરંગા યાત્રામાં ધારાસભ્ય દેવાભાઈ માલમ, નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ ચિરાગભાઈ ભોપાડા, કારોબારી ચેરમેન અજયભાઈ કોટક, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ચંદુભાઈ મકવાણા સહિત ભાજપના પ્રમુખ હિરેનભાઈ ભોરણિયા સહિતના મહાનુભાવો અને કેશોદના નગરજનો મોટી સંખ્યામાં આ યાત્રામાં જોડાયા હતા. જૂનાગઢ ખાતે ગુજરાત પોલીસ ડીજી વિકાસ સહાયની અધ્યક્ષસ્થાનમાં જૂનાગઢમાં ક્રાઇમ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ મહાનિરીક્ષક ડીજીસી વિકાસ સહાયની અધ્યક્ષસ્થાનમાં જૂનાગઢ ખાતે ક્રાઇમ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કોન્ફરન્સનો ઉદ્દેશ રાજ્યમાં વધી રહેલા ગુનાઓ પર કાબુ મેળવવા અને વિવિધ વિભાગોની કામગીરીની સમીક્ષા કરવાનો હતો. ડીજી વિકાસ સહાયે પત્રકારોને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે એપ્રિલ 2025ના મહિનામાં રાજ્યમાં ગુનામાં 3% ઘટાડો નોંધાયો છે. આ ઘટાડો માર્ચ 2025ની તુલનામાં નોંધપાત્ર માનવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસ વિભાગ દ્વારા 100 કલાકની વિશેષ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં અસામાજિક તત્વો અને ગુનેગારોની ઓળખ કરી છે. તેની સામે તાકીદે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. 501 અસામાજિક તત્વોના રહેણાંક મકાનોનું ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું છે અને 799 ગેરકાયદેસર વીજ કનેક્શનો કાપવામાં આવ્યા છે. અનેક સ્થળોએ અસામાજિક તત્વોના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે અને આ સિવાય પોલીસ દ્વારા સાયબર ક્રાઇમ સામે પણ કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. તેમ છતાં સાયબર જાગૃતિ માટે જનતાને સક્રિય ભૂમિકા અનિવાર્ય હોવાનું ડીજીએ જણાવ્યું હતું. દરિયાઈ સરહદોની સુરક્ષા માટે પણ રાજ્ય પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે તથા જરૂરી સિક્યુરિટી ફોર્સ તૈનાત કરવામાં આવી રહી છે. અંતે ડીજીએ રાજ્યના નાગરિકોને શાંત અને કાયદો વ્યવસ્થાનું પાલન કરવા અનુરોધ કર્યો છે અને પોલીસ વિભાગની કામગીરીમાં સહકાર આપવાની પણ તેને અપીલ કરી હતી. आज राज्य स्तर की क्राइम कॉन्फ्रेंस की आयोजन जूनागढ़ में की गई थी. हर महीने गुजरात राज्य के जो सीनियर पुलिस अधिकारीगण होते हैं, सब पुलिस कमिश्नर्स, सब रेंज के हेड्स और हमारे पुलिस भवन के सभी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं, हर महीने हम लोग एक क्राइम कॉन्फ्रेंस रखते हैं. और उस क्राइम कॉन्फ्रेंस में पिछले महीने में गुजरात पुलिस में अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग एकम में जो कामगिरी हुई है उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं. आज के क्राइम कॉन्फ्रेंस में अप्रैल महीने में गुजरात पुलिस की तरफ से जो कामगिरी की गई थी उसकी हमने समीक्षा की है. और इस समीक्षा के दरमियान अलग अलग जो पुलिस के विषय होते हैं उन विषयों पर अलग अलग सीनियर पुलिस अधिकारीगण अपना अपना मंतव्य वो प्रकट करते हैं, देते हैं. हम लोग विचार विमर्श करते हैं और भविष्य में हमारी जो पुलिसिंग स्ट्रैटेजी है उसमें क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है या नए स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने की जरूरत है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. इस पूरे चर्चा में हमारा जो क्राइम की जो स्थिति है, जो कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है और स्पेशलाइज्ड क्राइम्स में हम अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. अगर हम सिर्फ पिछले महीने की बात करें, अप्रैल 2025 की बात करें, तो आप जानते हैं कि पिछले कई समय से गुजरात राज्य के हर एक यूनिट में जो हमारे व्याजखोर हैं उनके विरुद्ध में असरकारक कार्रवाई करने के लिए गुजरात पुलिस बहुत दिन से प्रयत्न कर रही है, मेहनत कर रही है और इससे बहुत अच्छे परिणाम भी हमको देखने को मिला है. अगर अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में हमने ऐसे
जो ब्याजखोर हैं, जो गैर कायदेसर ढंग से लोगों को त्राहित करके ब्याज देके पैसा लेते हैं, ऐसे 69 लोगों के विरुद्ध में हमने एफआईआर दाखिल किया और उसमें से हमने करीब करीब 83 लोग को अरेस्ट किया। और ब्याजखोरों के विरुद्ध हम जो गुनाह दाखिल करते हैं उसके साथ साथ हमारे पुलिस एकमों में हम लोग अलग अलग ढंग से लोन मेला का भी आयोजन करते हैं और लोन मेला के माध्यम से जिन लोगों को सचमुच लोन की जरूरत होती है उनको अधिकृत ढंग से लोन मिले, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। अप्रैल महीना में हमने ऐसे करीब 27 लोन मेला भी लोगों के लिए हमने आयोजन किया था। कोर पुलिसिंग की बात करें तो हमारे यहाँ जो बहुत लंबे समय से जो आरोपी पकड़े नहीं जाते, जिनको हम एब्सकॉन्डर्स बोलते हैं, उनके पकड़ने के लिए भी खास प्रयत्न गुजरात पुलिस के सभी एकमों की तरफ से की जाती है। अप्रैल महीने में हमने ऐसे जो बहुत लंबे समय से एब्सकॉन्डिंग थे, ऐसे 542 एब्सकॉन्डर्स को हमने अप्रैल महीना पकड़ा है और उस 542 में 339 तो ऐसे हैं जो 1 साल से अधिक समय तक एब्सकॉन्ड कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को पकड़ने में भी गुजरात पुलिस को अप्रैल महीने में सफलता प्राप्त हुई। प्रजा के साथ हमारा संबंध और निकट का बने, हमारा संबंध और गाढ़ बने, हमारा स्पंदन और स्पंदन हो, इसके लिए हमारे बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें से एक प्रोग्राम हमारा जो है कम्युनिटी आउटरीच का, उसको हम लोगों ने नाम दिया है तेरा तुझको अर्पण, जो गुजरात पुलिस का अब एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बन के उभर के सामने आया है। पिछले कई समय से हम तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम करते हैं, जिसमें किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी व्यक्ति का कोई मुद्दा माल जो चोरी में गया हो, लूट में गया हो, उसको जब पुलिस रिकवर करती है तो कोर्ट के साथ संकलन करके ओरिजिनल मालिक को ये मुद्दा माल वापस मिले, उसके लिए पुलिस प्रयत्न करती है। इसको हमें तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं। तेरा तुझको अर्पण का जो प्रोजेक्ट हमारा है, उसमें अप्रैल महीने में करीब 669 प्रोग्राम्स हमने पूरे राज्य में किया था और इन प्रोग्राम्स में गुजरात पुलिस ने करीब करीब 22 करोड़ का मुद्दा माल लोगों को, मूल मालिक को वापस किया है। उसके साथ साथ हमारा जो साइबर क्राइम होता है और साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स होते हैं और वो जो साइबर क्राइम से अपना पैसा उनका चला जाता है, वैसे पैसे को रिकवर करके भी हम लोगों को वापस करते हैं। तो साइबर क्राइम रिफंड जिसको हम कहते हैं, सिर्फ अप्रैल महीना में हमने करीब करीब 15 करोड़ रुपया लोगों को वापस दिलवाया है गुजरात पुलिस ने। एक हमारा और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रण वात तमारी त्रण हमारी। इसमें गुजरात राज्य के जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितने भी आउटपोस्ट है, जितने भी चौकी हैं, वो हर 2 महीने में एक बार एक आम सभा करते हैं और आम सभा में जितने स्थानिक लोग होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं और स्थानिक प्रश्न क्या है उसके बारे में चर्चाएं की जाती है और स्थानिक प्रश्न जानने के बाद उस प्रश्न का हल लाने के लिए हम कार्यवाही करते हैं। उसके साथ साथ स्थानिक प्रजा को पुलिस के तरफ से ये बताया जाता है कि हमारी अपेक्षा क्या है। तो 3 बात उनकी आती है और 3 बात हमारी जाती है। तो ऐसा हमने अप्रैल महीने में कुल 1513 कार्यक्रम पूरे राज्य में किया था और उस कार्यक्रम के माध्यम से हमको जो स्थानिक प्रश्न के बारे में माहिती मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलता है, उस पर हम काम करते हैं, असरकारक परिणाम लक्ष्य कामगिरी करते हैं और वो जो प्रॉब्लम जो स्थानिक लेवल का होता है उसे सॉल्व करने के लिए चौकी लेवल पे, आउटपोस्ट लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे हम कार्यक्रम करते हैं और ये प्रयत्न करते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे पास जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्न का हम निकाल कर पाए। पिछले कुछ समय से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध गुजरात पुलिस ने एक खास मुहिम उठाई। आप सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले गुजरात राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को यह सूचना दी गई थी कि 100 घंटे के अंदर आपके पुलिस स्टेशन विस्तार में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन सब का आप लिस्ट तैयार कीजिए और एक बार जब लिस्ट तैयार हो जाता है तो उनके विरुद्ध कायदेसर का असरकारक परिणाम लक्ष्य कार्यवाही, शिक्षात्मक कार्यवाही कीजिए। अभी तक अलग अलग पुलिस स्टेशनों में असामाजिक तत्वों की ये लिस्ट जो है वो तैयार हो गई थी
और तैयार होने के बाद हमने 3 से 4 अलग अलग उनके विरुद्ध में कार्रवाई की। सबसे पहले कि अगर ये असामाजिक तत्व किसी भी सरकारी जमीन को एनक्रोच करके उस पर कोई कंस्ट्रक्शन किए हैं तो उस कंस्ट्रक्शन का डिमोलिशन किया जाए। नंबर 2, अगर ये असामाजिक तत्व अपने घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है जो कायदेसर का नहीं है, जो नियम के मुताबिक नहीं है, तो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए कार्रवाई की जाए। तीसरा, अगर ये असामाजिक तत्व जो है वो इलीगल बिजली का कनेक्शन लिया है तो बिजली के कनेक्शन को काटा जाए। और चौथा, कि ये बार बार जो गुनाह करते हैं तो उनके बेल के कैंसिलेशन के लिए भी कार्रवाई की जाए। तो इस 4 अलग अलग मुद्दाओं पे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में गुजरात पुलिस के हर यूनिट ने पिछले कुछ समय से बहुत ही असरकारक कार्रवाई की है और इसके कारण असामाजिक जो तत्व हैं उनमें एक भय का वातावरण भी अभी हमको देखने को मिला है। अगर हम सिर्फ अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में ये जो सरकारी जमीन पे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुए थे, अभी तक, सिर्फ अप्रैल महीना नहीं लेकिन अभी तक जब से हमने ये जुम्बेश शुरू किया है, अभी तक कुल ऐसे 227 डिमोलिशन हमने किए हैं जो इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए थे सरकारी जमीन पे। उसी तरह 521 ऐसे डिमोलिशंस हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन इन असामाजिक गुंडा तत्वों ने किया था, तो ऐसे 521 डिमोलिशंस हमने उनके घरों का किया है। करीब 799 ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इलीगल बिजली का कनेक्शन लिया था, उनको हमने उनका बिजली कनेक्शन हमने काटा है। ऐसे करीब करीब 799 असामाजिक तत्व हैं। और बेल कैंसिलेशन के लिए हमने करीब करीब 740 प्रपोजल्स, कोर्ट्स जो हैं उनको हमने बेल कैंसिलेशन के प्रपोजल्स हमने भेजे हैं और उसमें से कोर्ट के तरफ से करीब 26 असामाजिक तत्वों के बेल का कैंसिलेशन भी हुआ। तो ये जो हम कार्यवाही कर रहे हैं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में, उनका लिस्ट बनाना, उनका डिमोलिशन करना, हमारा जो इलीगल बिजली कनेक्शन है उसको काटना, बेल कैंसिलेशन, इसके कारण जो मैंने कहा एक भय का वातावरण तो आ ही गया है इन लोगों के साथ में। लोगों के मन में, आम जनता, जो गुजरात की आम जनता जो है, उनके मन में पुलिस के प्रति एक विश्वास और एक संतोष और एक सिक्योरिटी की भावना भी आई। और हम ये जो काम कर रहे हैं कुछ समय से, उसका परिणाम भी आज के क्राइम कॉन्फ्रेंस में जब हम चर्चा कर रहे थे कि अप्रैल के महीने में जो मारामारी के गुनाह जो बनते हैं, तो हम ये जुम्बेश जो कर रहे हैं तो गुनाह का आंकड़ा में कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इसके बारे में भी हमने क्राइम कॉन्फ्रेंस में चर्चा की और हमने आंकड़े देखे तो ज्यादातर ये असामाजिक तत्व जो है जो बार बार शरीर संबंधी गुनाह करते हैं, मारामारी का जो ज्यादातर गुनाह करते हैं, ऐसे गुनाहों का हमने एक एनालिसिस किया आज के क्राइम कॉन्फ्रेंस में और हमने देखा कि शरीर संबंधी के सभी कैटेगरीज में अप्रैल महीने में मार्च महीने से कम गुना दाखिल, वो चाहे मर्डर हो, मर्डर में 89 से घट के 84 हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर 71 से घट के 51 हो गया, आपका जो ग्रीवियस हर्ट होता है वो 1366 से घट के 1122, कुल मिला के करीब करीब 10% का कम शरीर संबंधी गुना अप्रैल महीने में बने हैं कंपेयर टू मार्च 2025। तो उससे हमें ये प्रतीत होता है कि हम ये जो कार्यवाही कर रहे हैं असामाजिक तत्व के विरुद्ध में, उसका एक परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है, गुनाहखोरी भी कम हुआ है। ऐसे मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि गुनाह के आंकड़ा में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारी जो सिस्टम्स है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की काम करने की जो कार्यशैली है, जो कार्य पद्धति है, उसमें अगर हम दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट लाएं, इस तरह के मंथली क्राइम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने स्ट्रैटेजीज को रीवर्क करें, अपने स्ट्रैटेजीज को हम रीओरिएंट करें, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ के हमारा पुलिसिंग स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक बनाया जाए, हमारे व्यवस्था को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, हमको इस पर विश्वास है। और मुझे ये आपको बताते बहुत प्रसन्नता हो रही है
कि हर पुलिस महकमे में, हर पुलिस एकम में, हर पुलिस कमिश्नरेट में, हर रेंज में, हर पुलिस अधीक्षक अपने अपने जिलाओं में इस व्यवस्थाओं को सुधारने में अभी खास ध्यान दे रहे हैं, जिसका ये परिणाम जो मैं आपको आंकड़ा की माहिती मैंने आपको जो दी है वो हमारे सामने है। इन शॉर्ट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस की कामगिरी में उसकी जो व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस व्यवस्था को और अधिक सुधारने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील हैं। गुजरात पुलिस टेक्नोलॉजीज का महत्तम उपयोग करती है और टेक्नोलॉजी के महत्तम उपयोग से हमारी जो कामगिरी है उस कामगिरी को और अधिक असरकारक बनाती है और अधिक परिणाम। आप जानते हैं कि अभी हमने एक ड्रोन के माध्यम से पुलिस रिस्पांस का एक शुरू किया था अहमदाबाद शहर में, बहुत अच्छे उससे ही परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने अभी एक आई प्रगति नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी गुना दाखिल होते हैं उसके जो फरियादी हैं उसको एसएमएस से ऑटोमेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है कि उसने जो गुना दाखिल किया है उसमें कब गुना दाखिल हुआ, कब पंचनामा हुआ, कब आरोपी अरेस्ट हुआ, कब चार्जशीट हुआ, वो सब उसको एसएमएस के माध्यम से उसे मालूम चल जाता है। इस तरह टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बात किया कि साइबर क्राइम में जो लोग अपना पैसा घुमाते हैं उनको पैसा वापस मिले, रिफंड की जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हमने अभी एक 13 तुझको अर्बन साइबर पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय गृह मंत्री श्री ने अभी कुछ दिन पहले गांधीनगर में लॉन्च किया था। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि उस पोर्टल के लॉन्चिंग के बाद हम जब उस पर काम शुरू करेंगे तो ये जो साइबर क्राइम के पैसा जो वापस करने की हमारी जो प्रक्रिया है वो ज्यादा तेज बनेगी और ज्यादा सरल बनेगी। आज के क्राइम कॉन्फ्रेंस में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हाजिर थे। आज ये क्राइम कॉन्फ्रेंस जूनागढ़ के ऐतिहासिक लोकेशन पे की गई थी। हमें बहुत प्रसन्नता है। हम हर महीने अलग अलग जगह जाके ये क्राइम कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज इस क्राइम कॉन्फ्रेंस के दरमियान जूनागढ़ पुलिस के जो लोगों ने अच्छा काम किया है उनको हमने सर्टिफिकेट्स देकर उनको प्रोत्साहित भी हमने किया है। और मैं गुजरात पुलिस के डीजीपी होने के नाते से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के लोगों को फिर से इस बात का ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गुजरात पुलिस आपके सिक्योरिटी के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा प्रयत्नशील है। आभार। थैंक यू। अभी के समय में